Assalamu alaikum everyone. Sir Shah Fahad here on the screen. क्योंकि AQ का रिजल्ट भी आ चुका है, उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आया होगा. Although majority of the students are not satisfied with the type of marking AKU has given, and as I predicted कि रीजनिंग का जो कट ऑफ होगा काफी हाई होगा. 70 और 80 अबव मैंने कहा था, 85 आया देखिए. और साइंसेस का कम. तो all the very best to all those who cleared it to stage 2. I'm conducting personalized one-on-one mock sessions. जैसे last year किए थे, 10 out of 11 students got accepted through those mock interviews. ठीक है, those of you who cleared the test, come join in as soon as possible for the mock interviews, and inshallah you will be accepted. ठीक है, बाकी इसके अलावा let's get started with solving the AKU 2024 paper, and I hope you guys will like it and you can tally your mistakes to them. Okay, just a disclaimer, this is not 100% accurate paper because it has been recreated, recompiled by students all over my platforms. Okay, and a special thanks to the batch of AKU 2024. I mean the 2024 students who just prepared, the MDCAT 2024 students who just prepared for AKU. They've compiled these questions for throughout my platforms. Okay, I posted it throughout the platform, the document, and they've been fulfilling it in with their input, and alhamdulillah 95% questions have been recreated. Okay, so after the special acknowledgement, and yes, EKU 2025 batch is also going to start off in this month next week, inshallah. So those of you interested can join in. If you want to join the MCAT or the NUMS batch, you can obviously definitely do that as well. The past paper sessions are underway now. Let's get started with this past paper now. Okay, guys, so this is the AKU 2024 paper which the students actually recreated. Okay, and some of the students attempted to solve the paper, and mashallah, it's very accurately solved. So a thank you and a special acknowledgement of those students as well who were able to solve the paper and compile it and upload it. Okay. But again, another disclaimer that these questions, they were compiled by SFK Academy students. So please make sure to know that. And let's start. This is the first question, biology section, biology. Although there were no separate sections on the paper, okay, for this paper, there were 50-50 questions, okay? 50 for sciences and 50 for reasoning. And to sciences, while 50 थे, there was negative marking was present over here, and over here, no negative marking was present, okay? There were no separate sections for each of the individual subjects. Let's begin. Now, biology. This is the question they're telling us that Bioret test was positive. So which of the following would give a positive Bioret test? You know, Bioret test for proteins, and hence egg white has protein. So that's the correct answer. And the explanation they've given it over here is very helpful as well. Then a girl examining the transport of material across the cytoplasm and the nucleus. अगर आपके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में कोई ट्रांसपोर्ट हो तो वो हमेशा वही चैनल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि न्यूक्लियस के वॉल पे हों. ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर्स इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन. Just observe बैक्टीरिया कॉर्क्रियो मूवमेंट जो है वो आपकी फ्लैजुलर मूवमेंट का दूसरा नाम है. भी टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली देख लीजिए क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से. अच्छा, मोनोकॉट्स में कैम्बियम सिस्टम नहीं होता. ठीक है, कैम्बियम आपका आंसर है, ये करेक्ट है. ठीक है, इसके साथ साथ आपकी रीचेक भी हो जाएंगे सारे आंसर्स. कैम्बियम जो है वो एक वैस्कुलर सिस्टम होता है जो कि मोनोकॉट्स में नहीं होता. मूविंग ऑन. रेप्टाइल टर्टल होता है, ये सब नहीं है. ठीक है, मूविंग ऑन. ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय व्हिच प्रोसेस, तो ये सबको पता होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है, एक ऑर्गेनिज्म लेवल जो उसको आप ब्रीथिंग से भी जानते हैं, और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन. तो दैट्स द आंसर. प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक कार्बोहाइड्रेट्स,
So photosynthesis is the process by which plants make glucose. Okay, that's correct. Then oxyntic cells are those which produce HCl. Okay, parietal cells which get them. Ovulation डे 14 पर होती है LH से सर्च की वजह से. ठीक है, which means the release of egg or ovum from the female ovary. And day 14 कह रहा हूँ when the cell cycle is, sorry, the menstrual cycle is 28 days long. Okay, अगर वो 30 days long है तो फिर आप 30 में से 14 माइनस करके 16 days जो आएगा ना, 16 डे पर ओवुलेशन होगी. ठीक है. Hormone secreted by the kidney is erythropoietin. Erythropoietin is another hormone that is secreted by the kidney when the blood oxygen levels are decreasing. Okay, it helps increase the oxygen levels. Lungs exchange gases with blood by which component? Alveolar walls. सही है. Alveoli या alveolar walls पे होती है ये gases exchange between the blood and the lungs. क्योंकि alveoli are thin single celled sacs. ठीक है, single celled walls होती है इनकी, thin होते हैं ये, gases exchange हो जाता है. ऑफ द फॉरेन आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ऐसी चीज बतानी जो इन दोनों में कॉमन हो. तो कैपिलरीज में एक ही चीज होती है एंडोथेलियम, वो आर्टरीज में भी होती है. तो एंडोथेलियम आपका आंसर है. ठीक है. 6 मेंबर रिंग ऑफ ग्लूकोज को पायरानोज कहते हैं. ये टेक्स्ट बुक की फैक्चुअल डेटा है, मतलब ये डेड स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन है. Organism having a rasping tongue like Rhidola muscular foot belongs to ये गैस्ट्रोपोडा आपको डायरेक्ट किंगडम एनिमल से ही एमसीक्यू आ गए. ठीक है. विच हार्मोन इज रिलीज बाय इंटरनल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है गाइस. पैंक्रियास की जो मैं एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियास पे एक्ट करता है, लेकिन रिलीज पैंक्रियास से नहीं होता बल्कि इंटेस्टाइन से होता है. ठीक है. तो इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, सीक्रेटिन उसका नाम होता है. वो जाता है सीधा पैंक्रियास पे एक्ट करता है, पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज कराता है. बाइकार्बोनेट आयंस जाके डायरेक्ट जो स्टमक से आने वाला एसिडिक कंटेंट है ना उसे न्यूट्रलाइज करता है. तो सीक्रेटिन इज द आंसर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे ड्यू टू द हार्श एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक. ठीक है. स्टमक का जो एसिडिक content it is toxic to the enzymes, it can denature them. So to prevent that we need secretin. Okay, enzyme present in the human digestive system, pH of 1.4. ये तो डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, एक टेबल बना है, उसके वैल्यू है 1.4 पे पेप्सिन एक्ट करता है. नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. गाइस अगर ये की टर्म आप मिस कर गए तो आप आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरिटी इनमें से कौन सी नहीं है? तो सिमिलरिटी इनमें से ये नहीं है कि it binds to four oxygen atom, four oxygen molecules. ठीक है. तो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, फोर ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स. ठीक है. ये इसलिए गलत है क्योंकि आपके पास हीमोग्लोबिन में तो फोर होती है लेकिन मायोग्लोबिन में एक ही होती है. ठीक है, 1.1. सेलुलर रेस्पिरेशन essential to make ATP. ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा गाइस, आके एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज. Right guys, sorry about that.
असल में मैं चार्जर कनेक्ट करने गया हुआ था. ओके, सो आई होप यू गाइस कैन सी मी नाउ. राइट. तो टू मेक एटीपी, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है. आगे बढ़ते हैं. फैट्स एंड ऑयल्स. फॉर फैट्स स्पॉइल ड्यू टू द विच प्रोसेस. तो फैट इसलिए स्पॉइल करते हैं क्योंकि उनमें एस्टर होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो इसलिए ये फैक्ट याद करना है. वैक्सेस जो होती हैं वो आपके पास वो भी एस्टर्स ही होते हैं. तो एस्टर दो चीजों से बने होते हैं. एक होता है अल्कोहल, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वो वाले अल्कोहल जो कि लॉन्ग चेन हो. तो लॉन्ग चेन अल्कोहल, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में आपको पहले से ही कह दिया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड का किसके साथ रिएक्शन हो तो बनेगा फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है. और लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा. फिर नेक्स्ट है आपके पास व्हाट कलर इज क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी जो है वो एब्जॉर्ब कौन सी लाइट करता है? ब्लू ग्रीन, ब्लू रेड, सॉरी ब्लू रेड, राइट. ब्लू के रीजन में एक हाई पीक होती है, एक रेड के रीजन में होती है. तो ये खुद ऐसा कलर होगा जो कि ना ब्लू हो ना रेड हो, यानी कि येलो ग्रीन बेस्ट होगा, क्योंकि बाकी दो में ब्लू है. ब्राउन ऑरेंज नहीं, बल्कि येलो ग्रीन इज अ बेटर चॉइस. Which of the following characteristics applies to individuals with blood type O? ब्लड टाइप अगर O है तो मतलब उनके आरबीसीज के ऊपर ना तो ए एंटीजन है ना तो बी एंटीजन है, मतलब कि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज होंगे अगेंस्ट ए एंड एंटीबॉडीज होंगे अगेंस्ट बी. सो ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. नेक्स्ट. A patient has trouble moving his arm above his head and experiences pain when extending it. Extending का मतलब ये है कि अपना यही आर्म जो है ना ये पीछे की तरफ ले जाए ऐसे. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग आर्म जो है. अब एक चीज याद रखिएगा, इफ यू गाइस कैन सी मी इन द कैमरा, आर्म इसे कहते हैं, ठीक है ना, ये ऊपर वाले को कहते हैं आर्म. फोर आर्म कहते हैं इस वाले को. ठीक है. यहाँ से नी से, सॉरी एल्बो से हैंड तक का जो रीजन है ये, दिस इज फोर आर्म, दिस इज नॉट आर्म. ये आर्म नहीं है. आर्म इज फ्रॉम द एल्बो टू द शोल्डर, ये रीजन दिस इज आर्म. तो आर्म को एक्सटेंड करना क्या होता है? फ्लेक्स करना मतलब स्ट्रेट जाना, और एक्सटेंड करना मतलब पीछे आना. तो एक्सटेंडिंग द आर्म मींस गोइंग बैकवर्ड. ठीक है, गोइंग बैकवर्ड मींस कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है? ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. तो ना तो ऊपर ले जा सकते, तो ऊपर ले जाना तो वही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. पीछे ले जाना भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है. Where does the blood filtration occur under pressure? तो किडनी में कहाँ होती है भाई? ग्लोमेरुलर स्पेस में. ग्लोमेरुलर कहाँ पर होता है भाई? वोमेन्स कैप्सूल या रीनल कैप्सूल में होता है. What is the pathway of impulse in a simple reflex arc में क्या होता है भाई? सबसे पहले आपके पास रिसेप्टर होता है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्ट है. ऑप्शन ए करेक्ट है. फिर माइटोसिस से क्या होता है? माइटोसिस से सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो नहीं करते, याद रखिएगा, ग्रो नहीं करते. ग्रोइंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस. माइटोसिस मींस डिविजन. ड्राई वेट रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही होती है, फूड जो स्टोर्ड होता है वो यूटिलाइज होता है, तो फूड कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वो escape कर जा रही है तो मास कम होगा. फिर व्हाट इज द पाथ ऑफ द ब्लड ऑफ द लोअर बॉडी टू द हार्ट एंड देन टू द नेफ्रॉन. अब यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शंस मिस आउट जानबूझ के किए हैं कि आप बाकी ऑप्शंस को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते. लोअर बॉडी से आपका ब्लड पहले तो आ रहा है, वीना कावा से होते हुए आपके राइट एट्रियम में जाएगा सबसे पहले, राइट. फिर राइट एट्रियम से, लेट्स से ये आपका हार्ट है, ये ऊपर वाले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम से एवी वॉल्व के थ्रू आपके पास राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, फिर लंग से होता हुआ पल्मोनरी वेन से वापस से इसमें आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट एओर्टा, डोर्सल एओर्टा से नीचे और ऊपर और हर जगह जाएगा. तो अब इसको अगर आप देखें तो अब आपका ब्लड यहाँ नीचे से आता हुआ बोल रहे हैं, तो राइट एट्रियम में आएगा सबसे पहले, करेक्ट. राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी में. अब देखिए इन्होंने राइट वेंट्रिकल जानबूझ के हटाया है, ठीक है लेकिन राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी आती है ना, फिर पल्मोनरी आर्टरी के बाद पल्मोनरी वेन आती है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल. अब इन्होंने लेफ्ट एट्रियम स्किप करके डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल डाल दिया है. पाथवे वही है, ठीक है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा आता है, फिर एओर्टा के बाद नीचे जाके रीनल आर्टरी आती है, तो इसलिए ऑप्शन ए सबसे बेस्ट है. बाकी सारे ऑप्शंस में जो है ना वो गलत है. ऑप्शन ए में से ऑप्शन बीच के मिसिंग है, लेकिन पाथवे ओवरऑल पाथवे सेम फॉलो हो रहा है. सही है. मिल्क शुगर में गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है, याद रखने की चीज है. अब केमिस्ट्री पोर्शन पे आते हैं, बट एज आई सेड अलग अलग पोर्शन नहीं थे, साइंसेस का एक ही सेक्शन. Ethyne reacts with water in presence of sulfuric acid. What unstable intermediate is formed when ethyne reacts with water? Ethyne होता है आपके पास सी ये वाला, ठीक है. इसको आप इथाइन कहते हैं,
ठीक है, या फिर एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा। वाटर ऑब्वियसली H2O है, तो H2O का एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे, OH दूसरे पे, तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड बन जाएगा, OH और H बन जाएगा। अब ये क्या है, अब ये डबल बॉन्डेड अल्कोहल है, जिसको आप क्या कहते हैं, आप इनॉल कहते हैं। ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल, इनॉल से नाम ऐड होता है। इनॉल का दूसरा नाम होता है विनाइल अल्कोहल। सही है, चलो। Waxes are esters of long chain fatty acids, and ये तो repeat question है, alcohol। फिर waxes are on heating produce a smelly odor due to the presence of esters। वैक्सेस जो है वो एस्टर ही होता है ना, वो तो और कोई तो इनमें से अल्कोहल तो खुद नहीं होता, वो अल्कोहल और फैटी एसिड कंबाइंड होते हैं, एस्टर होता है, एल्डिहाइड भी नहीं होता। इसलिए एस्टर और स्मेली एस्टर्स ही होते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इट कॉजेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड टू स्लाइड पास ईच अदर, जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। कौन सी फोर्स है भाई, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। सही है, फ्लूइड फ्रिक्शन। ये एमडी कैट का भी क्वेश्चन है। What causes the most penetration to the nucleus of an atom? Now, nucleus is positively charged. Now, this is something you need to understand. Nucleus is positively charged. If you have a negative particle coming in, negative electron coming in, it won't be able to come and penetrate through the electron layers, right? Because there are electron layers over here, they'll provide shielding to the nucleus, and hence this electron will face some difficulty before reaching the nucleus. Then if you have a positive nucleus, it may pass the electron layers, but it won't be able to reach the nucleus and might be repelled back because of the positive like charges. So which one can pass easily straight without facing any repulsion at all is the neutron. So neutron is the correct answer because it's neutral. फिर molecular orbital theory describes bond order and paramagnetic behavior, याद रखने वाली चीज है। What is not a characteristic of group 7A elements? 7A halogens होते हैं, halogens gases और solids होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते मेटल्स को। सी, ठीक है, मैग्नेटिक भी नहीं होते। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू। पैरामैग्नेटिक कहते हैं मैग्नेटिक मतलब मटेरियल को अट्रैक्ट करना, और डायमैग्नेटिक कहते हैं इट डज नॉट अट्रैक्ट। डायमैग्नेटिक कब होता है, जब व्हेन यू हैव जीरो unpaired electrons in the metal, or paramagnetic when you have more unpaired electrons। ये दोनों unpaired electrons पे डिपेंड करते हैं, इसलिए आंसर इज unpaired electrons। Which of the following contains both metallic and non-metallic properties? So it's metalloids. Both of them are present in it. Oxidation state of magnesium in MgO2. MgO2. अब ये देखें, ये MgO नहीं है, MgO2 है। याद रखिएगा, Mg is a group 2 element, so its oxidation state is always gonna be +2। All you need to do is just find out, okay, it's +2, it's always +2, so yeah, that's the answer। खत्म, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट, नॉट मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, so concentration equals moles upon volume। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अगर ये 6 ग्राम सॉल्यूशन है, 40 उसका मास है, तो मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर mr, तो 6/43/20 आ गया। मोल्स को डिवाइड करना है 100 dm³ से, क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर dm³। अब ये cm³ को dm³ में कन्वर्ट करने के लिए 100 की जगह इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब 3/20 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से। सही है, 0.1 का मतलब सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है 0.1 से। अब 0.1 का मतलब होता है 1/10, राइट? तो मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपके पास 1.5 आ गया। 1.5 आपका आंसर। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, आगे बढ़ता है। 13, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर MgO2 विद वाटर, तो ये यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम पेरोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एब्जॉर्ब द लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है, तभी तो वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, वरना तो मसला हो जाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन, ये याद करने वाली चीज है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो या which of the following statements is incorrect regarding equilibrium state? तो ये incorrect वाला ये है कि it ceases to exist। The reaction ceases at equilibrium मतलब the reaction stops at equilibrium, and this is wrong। No, it does not stop at equilibrium, it keeps going। Next, which of the following come, but the concentration becomes constant। The concentration होती है ना, वो constant हो जाती है, लेकिन the reaction does not cease to exist। 17, which of the following compounds have the highest
melting point to silicon dioxide because it's a giant covalent structure. ठीक है, giant covalent compound. देन स्पेक्टेटर आयंस निकालने के लिए आपने देखना है कि एक्वस स्टेट में दोनों साइड्स पे कौन से आयंस मौजूद है। आपने इक्वेशन बनाई, सिल्वर क्लोराइड का बस पता होना चाहिए कि इट्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो वो सॉलिड के साथ लिखी जाएगी। नाउ बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड इट्स सॉलिड, तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड विल गिव यू सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये भी एक्वस है, अब पोटेशियम भी एक्वस है, नाइट्रेट भी एक्वस है, तो नाइट्रेट और पोटेशियम दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये तो एक्वस है ना सिल्वर नाइट्रेट। तो अब बचा क्या, सिर्फ सिल्वर और क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो क्या क्या आपके पास स्पेक्टेटर था, नाइट्रेट था क्योंकि वो कट गया दोनों साइड से, पोटेशियम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है भाई, ये जरा देख लें। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में आप अगर देखें तो कि जिसकी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगी। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आपको टर्शियरी ब्यूटानॉल में नजर आएगी, बाकी सब में ब्रांचिंग नहीं है। What is the product of hydrolysis of acetyl chloride? Acetyl chloride का फॉर्मूला यही है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ आप OH डालो, वाटर डालो मतलब H2O डालो। ठीक है, H2O डालने के बाद जो लेफ्ट साइड है उससे आपके पास एसिड बन जाएगा, और जो राइट साइड है उससे भी एक और एसिड बन जाएगा। यानी लेफ्ट साइड को आपका OH दे दिया जाएगा, राइट साइड को आपका H दे दिया जाएगा। सो राइट साइड से आपका HCl बनेगा और लेफ्ट साइड से आपके पास क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। HCl and acetic acid are the answer. Specific heat of water is due to high specific heat of water, बेसिकली क्वेश्चन होगा। तो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अनरिएक्टेड, अच्छा ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, ठीक है ना। ये अनरिएक्टेड मास ऑफ दिस इक्वेशन बोला है और वो हमसे पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग रीजन, तो लिमिटिंग रीजन ऐसे इससे एक इक्वेशन को देख के पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन अगर बैलेंस हो, तो इक्वेशन अगर बैलेंस हो तो बस फिर उसका मतलब है कि दोनों लेफ्ट साइड पे जो दोनों रिएक्टेंट्स है दोनों लिमिटिंग रीजन। That's why let's skip this one. I think हो जाना चाहिए, चेंज नहीं हो सकता, वो इसी स्टेट में रहेगा। Therefore it's zero. ठीक है। In the provided diagram of an energy profile, what does this arrow represent? ये वाला arrow की बात हो रही है जो कि reactants के लेवल से स्टार्ट होके बिल्कुल पीक पे जा रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। सही है। मैक्सिमम yield of sulfur trioxide, best sulfur dioxide combines with oxygen to form sulfur trioxide. Let's balance out the equation. गैसेस एंड गैसेस। अब ये देख लें, आपके लेफ्ट साइड पे 3 मोल्स हैं ऑफ गैस और आपके राइट साइड पे 2 मोल्स हैं ऑफ गैस। तो अब आपके पास 3 मोल्स और 2 मोल्स है, तो यील्ड बढ़ा रही है या प्रेशर बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा ना। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसका जो इंथैल्पी चेंज है वो लेस देन जीरो है, मतलब इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने से ही आगे बढ़ेगा, राइट। सो लोअर द टेम्परेचर सो दैट इट शिफ्ट्स फॉरवर्ड। टेम्परेचर कम करें तो वो आगे बढ़ेगा, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। General rate equation, Kc का formula. Kc is products to the power of the moles and reactants to the power of the moles. So C to the power of small c, D to the power of z, divided by A to the power of u, and multiplied by B to the power of b, small b. So yeah, option B correlates with this. Next, empirical formula of oxide of silicon to silicon SiO2 ही होता है, इससे कम नहीं हो सकता, तो yeah. Next, physics. Now, empirical waves, electromagnetic waves from sun to earth का शेप कैसा होगा। सन अब बहुत दूर है, अर्थ यहाँ है, तो इमिटेड जब वेव्स एमिट आउट होती है तो वो सर्कुलर होती है, लेकिन जब बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो ऑलमोस्ट प्लेन हो जाती है। ठीक है, तो प्लेनर वेव आपके अर्थ पे पहुंचेगी, सब स्फेरिकल नहीं। 775 केल्विन इज इन डिग्री सेल्सियस, इसमें तो आप ये तो खुद कर लें। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, तो ये इधर यू गो। नेक्स्ट, the first law of thermodynamics is the law of conservation of energy. Next, work done in a closed system is zero. Next, two parallel current carrying conductors are in the same direction, so they will attract each other, so they move towards each other. Next, which statement does not explain Newton's third law? Newton's third law में cancelling नहीं होती, so it does not explain it. Next,
Which two statement affirm the wave nature of light and electron? तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर्ड ओवर 2m एंड लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। दिस फॉर्मूला एक्चुअली de Broglie's इक्वेशन कहते हैं इसको। अब h ओवर mv हो गया। अब लैम्डा के आ, या तो लैम्डा चाहिए आपको, और आपको और क्या चाहिए? मतलब ये एम वी चाहिए, क्योंकि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाली जो इक्वेशन है ना, वो ये वाली है, इसको कहते हैं डिब्रॉयज इक्वेशन। अब ये जो डिब्रॉयज इक्वेशन है, ये कनेक्ट करती है आपके एम ये कनेक्ट करती है आपके वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को। सही है। तो वो कह रहे हैं कि वेव नेचर किससे रिफॉर्म होगी? तो मोमेंटम एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी है रही ना, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। नाइन्थ डायग्राम मिसिंग है 10 में। हाउ डज द डिस्टेंस बिटवीन द डार्क ब्रांच इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज? तो यही एक फॉर्मूला है। ठीक है। लैम्डा डी ओवर एच, इसमें मैं डी क्या कह रहा हूँ, डी जो है ना वो आपकी स्लिट्स और स्क्रीन जो है उनके बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है। तो हाउ डू वी इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि इन स्लिट्स के बीच में भी एक डिस्टेंस होता है जिसको आप एक्स कहलाते हो, और ये इन दो स्लिट्स के बीच में भी डिस्टेंस होता है जिसको आप ए कहलाते हो। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि distance between dark bands is decreased. How can this happen? How can the dark band distance be decreased? फॉर्मूला देख लें। आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो एक्स है, तो एक्स को कम करना था, या तो आप वेवलेंथ बढ़ा दो। ठीक है। सॉरी, वेवलेंथ कम कर लो, या तो फिर आप ए बढ़ा दो। ठीक है। सो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। A light ray incident at 40 and critical angle of 42, what happens? अब अगर 40 पे आ रही है लेकिन critical angle 42 है, तो critical total internal reflection तो नहीं होगी। ठीक है। तो क्या होगी, वो बस रिफ्रैक्ट होके निकल जाएगी, तो पास थ्रू द बाउंड्री अलोंग पी बी। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला है बी क्यू वी। ठीक है। वो खुद कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैक्सिमम, अच्छा वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पर्सन कैन ऑब्जर्व इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट गिवन द वेवलेंथ एंड डिटेल्स। अब इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि इसमें कहीं से भी हमें ये नहीं पता चल रहा कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम आपके तीन है। डी साइन थीटा वो लैम्डा लगाएंगे। डी आपको पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, लैम्डा आपको पता होगा, ताकि आपका आंसर आ जाए। स्केलर एंड वेक्टर, अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि आपके पास n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू अगर 3 आ गई, इसकी ये मतलब हर किस नहीं कि मैक्सिमा 3 है। n की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि द ऑर्डर नंबर इज 3, कि दोनों साइड्स पे आपके पास पहले 1 होगा, फिर उसके बाद दोनों साइड्स पे 2 होगा, फिर उसके बाद दोनों साइड्स पे 3 होगा। ठीक है। मतलब कि अगर ये आपके मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे आपके पास डार्क फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है। 14, आइडेंटिफाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ वर्क मोमेंटम, ये इन्होंने कर दी, वर्क स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है। नेक्स्ट है mg sin थीटा। अच्छा वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक एज इट गोस डाउन द हिल। mg sin थीटा तो होता है, ये याद कर ले कि mg sin थीटा हमेशा वेट का कंपोनेंट होता है जो एक्ट्स डाउन द हिल। लेकिन ये जो अप्लाइड फोर्स है उसका, वो जो उसकी जो एक्सप्रेशन है ना, वो है f cos थीटा। ठीक है। तो f cos थीटा और mg sin थीटा दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ये रही। ठीक है। If a system absorbs 1000 joules, the volume changes from 0.25 to 0.75. What is the change in internal energy? Change in internal energy. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? हम कैलकुलेट नहीं कर सकते असल में, क्योंकि यहाँ यूनिट्स मिसिंग है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको निकालना, तो फिर क्योंकि ये अब्जॉर्ब है तो ये प्लस होगा, ये 0.25 से 0.75 है, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, और क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर आप आंसर निकालिए। फिर व्हेन माइक्रोवेव्स एंटर अ मीडियम
and the speed is reduced, what happens to the wavelength and frequency? Frequency never changes due to a changes in wavelength. Okay, it stays the constant. Okay, वेवलेंथ की जहां तक बात है तो v is equal to f lambda में अगर v कम होगा तो lambda भी कम होगा given that f is constant. यंग्स डबल स्लिट पूछ रहे हैं कि वही क्वेश्चन है, which one will increase the separation between the fringes? या तो आप वेवलेंथ बढ़ा दो या तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन बढ़ा दो, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कम कर दो.